if you've just completed your 12th right now and you're figuring out which college is for you, this is the video that you need. First, we're going to talk about the commerce background in this video. Even if you're from a humanities background, this could work for you as well. So, since I was from a commerce or mathematics background, and why I'm making this video is because I know at this point, literally, you're so puzzled on what you should choose, which college you should go to, which course you should apply for. It is such a puzzle. You feel like I'm a fit for everything, but I'm also a fit for nothing. At first, we're going to talk about the two kinds of students. The one who already figured out what they want to do in their life, and at second, who are honestly open to everything and anything. They want to explore and know what they're meant for. So the first, if you've already figured out, great. Congratulations to you, kudos to you that you already know what you want to do, be it CA, CFA, actuarial science, or whatever path you want to go ahead with. And at second, if you have not figured out, I'm so happy for you because you have the time to actually explore and literally try out everything to know what is actually meant for you. But trust me, do not give yourself more than 6 months or a year because this would be enough to actually know what you want to do. You could try out in literally every field. If you have not applied for CA or CF, if you think that this is not meant for you or you're confused कि इसमें से मेरे लिए कौन सा हो सकता है, तो यार देखो अभी एट द मोमेंट कॉलेज में अप्लाई करते हुए कोई भी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई मत करना. स्पेशलाइजेशन साउंड्स फैसिनेटिंग कि वाओ बीकॉम इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बीबी इन डिसीजन साइंस या फिनटेक, वट एवर इट इज, बट अगर हमें क्लैरिटी नहीं होती है ना हमें क्या करना है और हम स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं जिस बिकॉज वो स्पेशलाइजेशन का टैग दे रही है, तो आगे जाके बहुत रिग्रेट होता है. That's coming out of my personal experience. So my name is Manveen Kaur and I am currently pursuing my BCom at Sri Guru Gobind Singh College of Commerce. Before this, I was at Christ University Central Campus, where I was pursuing my BCom in Finance and Accountancy. Wow, that specialization sounds so interesting, right? And so fascinating. But that specialization was actually integrated with CA. And I did know that after I got selected, actually. That moment I was like, ठीक है यार CA कोई बात नहीं मैं कर लूंगी आगे. मेरे को वैसे भी इतना क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है. 12th के बाद मार्क्स आ गए, अब देखते हैं. मेरे माय पेरेंट्स वर लाइक कि तेरे मार्क्स अच्छे आए 12th में, यू गॉट 93, सो सीए तो तेरे से आराम से हो जाएगा, तू करके देख. बट ऐसा नहीं होता. इट्स ऑल्सो अबाउट द क्रिएटिविटी दैट यू हैव इनसाइड ऑफ यू. आई पर्सनली अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितनी क्रिएटिव, कितनी मतलब मुझे पहले भी था कि मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, बट आई फील लाइक मुझे वो साइड इतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया जा रहा था या शायद मुझे खुद से क्लैरिटी नहीं थी कि उसे पिच कैसे रखनी है. तो डीप डाउन आपको पता है कि आप किस चीज के लिए बने हो, ठीक है. आपको एक अंदर से वो फीलिंग आती होगी, हाँ यार आई रियली लाइक मैथ, आई लव मैथ और आई हेट मैथ. Math is not my thing. Business studies is my thing. Or let's say accountancy is my thing. Accountancy बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, I know that. But you would know what subject is actually for you. अगर आपको इको और मैथ का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इको ऑनर्स वुड बी अ ग्रेट पिक फॉर यू. एक्चुअली मैथ ही होती है उसमें मेजोरिटी, तो कहने की बात है इको पसंद तो वो इको ऑनर्स में प्योरली मैथ होती है, ठीक है. एंड पीपल थिंक मुझे इको पसंद है तो मैं इको ऑनर्स कर लूँ. नो, दैट्स अ ब्लंडर, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू फिगर आउट थिंग्स. कॉमर्स के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं इन इको एंड इन अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. I am super sorry. I did not include BMS and BBE, which are the prominent courses for a commerce graduate. So, yes, guys, you can consider these two courses as well. BMS stands for Bachelor in Management Studies, and BBE stands for Business Economics. So, it basically has business and economics in it. And BMS one has more of marketing, HR knowledge. It has little bit of accountancy and economics. Like in BCom, you would see accountancy and economics a lot, but in BMS, that's quite less. There's more focus on marketing and HR. And when it comes to BBE, math is quite a lot in BBE, maths and stat. If you see yourself in the finance and analytics career, BB would be a great choice. And if you see yourself in marketing, HR, then you could consider BMS as a great option as well. मेनली हम बात करें तो लोग मोस्टली बीकॉम या बीबीए में ही जाते हैं. बीएससी में अगर आप जा रहे हो तो आपका या तो कोर इंटरेस्ट मैथ्स में होना चाहिए या कंप्यूटर्स में होना चाहिए. इन दोनों में ही एक्चुअली मैं कहूँगी कंप्यूटर्स और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, तो ही आप बीएससी की तरफ जाना अगर आपको थर्ड ईयर तक खुशहाल रहना है तो. Otherwise, after your first sem only, you would be like कि मैंने क्या चीज ले ली. It is just out of my comfort zone. It is too much to handle. ठीक है? Because I've seen a lot of BSc students crying जो commerce background से आते हैं, उनको first year के बाद ऐसा होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ. It is just too much to handle. Too much math in it, and mostly वहाँ पे PCM के बच्चे आते हैं, तो it's like उनको math और computers में उनका हाथ set होता है, उनका basic बहुत strong होता है. कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा वो दिक्कत आ जाती है इस चीज में.
और रही बात अब बीकॉम बीबीए की, तो जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशलाइजेशन तभी चूज करना जब क्लैरिटी है, ठीक है। या आप एक बार स्पेशलाइजेशन के थ्रू जाना, अपने आप के साथ जाओ, चैट जीपीटी से ढेर सारी बातें करो, पूरे पूरे दिन चैट जीपीटी के साथ लगे रहो, चैट जीपीटी को इतने सारे प्रॉम्प्ट्स दो, पूरी अपनी जिंदगी के बारे में बताओ चैट जीपीटी को कि यार देखो मैंने अपने स्कूल में ये चीजें करी हैं, इस चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था जब मैंने डिबेटिंग में पार्ट लिया, या जब मैंने थिएटर्स किया मुझे बहुत मजा आया, मे बी आई थिंक मेरे लिए हो सकता है, बट अभी मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि मेरे लिए डिबेट ही है या मेरे लिए थिएटर्स ही है। सो ऐसी सी बातें सब बताओ चैट जीपीटी को, वो आपको पूरा एनालाइज करेगा एज अ पर्सन कि आप कैसे हो, ठीक है। कि आपका क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए एज एन इंट्रोवर्ट कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। पहली चीज तो ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में आए, ट्राई एंड बिकम एन एक्सट्रोवर्ट। आई नो इट इज easier said than done, but you will have to be an extrovert in your life at one point to communicate with everyone and to be the one who everybody looks at, right? So it is an important skill that you need to have. But ठीक है, I mean, if you think that your core self is introvert, ये वो तो सब कुछ बताओ चैट जीपीटी को, it would tell you that what is actually meant for you। ढेर सारा बड़ा बड़ा लिखो कि यार नहीं यार मेरे को लगता है मैं इस चीज के लिए बना हूँ, इसलिए मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं कर लूँ, मे बी दैट इज जस्ट नॉट फॉर मी, मुझे नहीं लगता कि मैं 10 साल बैठ के कुछ ऐसे कर सकता हूँ, ये वो। टेल इट ऑल दैट यू थिंक दैट यू पॉसिबली would want to know about yourself, ठीक है। तो अगर आपको बीकॉम करनी है, पहली चीज तो डीयू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में सब कुछ आ जाता है, बीकॉम की स्पेशलाइजेशन, मैंने से बीबीए, उसमें सब कुछ आ जाता है, बीबीए ऑनर्स, बीबीए की सारी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। दैट्स हाउ वी कंसिडर करेंगे। तो बीकॉम में योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डीयू, बिकॉज डीयू बहुत अच्छा कॉमर्स का बैकग्राउंड देता है अगर आपका टॉप 5 में हो जाता है, विच इज एसआरसीसी, एलएसआर, हिंदू, हंसराज और स्टीफेंस, और मतलब आपको पता है ये सारे टॉप 5 कौन से होते हैं ना, तो वो जाता है, दैट इज वेल एंड गुड। और रामजस में भी होता है, श्री गुरु गोविंद सिंह में भी होता है, देन ऑल्सो इट्स ग्रेट। मतलब बीकॉम के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू हैव। तो बहुत अच्छा जा रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद अब फिर स्किल्स डेवलप करनी होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बीकॉम में अगर आपका डीओ हो रहा है, यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, बट उसके बाद की आपकी प्रायोरिटीज प्राइवेट कॉलेजेस में जो होनी चाहिए, दैट शुड बी क्राइस्ट, एनएमआईएमएस एंड सिम्बायोसिस। आई नो लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो कंसिडर बीएचयू, या आई थिंक वो भी करते हैं, आईपीयू भी कंसिडर करते हैं। मेरा पर्सनल टेक है उस पर कि आप बीएचयू और आईपीयू को प्लीज इतना कंसिडर मत करो। आईपीयू में तो पता नहीं बहुत ही मैनेजमेंट कोटा चलता है, विच आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्या है वो सब। एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसमें ये भी रहता है कि दिल्ली के ही स्टूडेंट्स का मेजोरिटी सिलेक्शन होगा। बीएचयू इज मेनली फॉर साइंस के स्टूडेंट्स, तो आप क्यों एक साइंस के कॉलेज में जाकर कॉमर्स का कुछ करना चाहते हो, लाइक वाई, ठीक है। तो फिर कंसिडर प्राइवेट कॉलेज ड्यू के बाद, जिसमें क्राइस्ट, एनएमएमएस और सिम्बी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सिम्बी सिम्बाइसिस, ठीक है। पीपल आल्सो कंसिडर अदर कॉलेजेस लाइक पारुल यूनिवर्सिटी, लॉयला यूनिवर्सिटी, लॉयला इज इन साउथ, सेंट जोसेफ वो भी साउथ में है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, बेने यूनिवर्सिटी। आई हर्ड कि बेने की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट, मतलब मैंने देखा है वहाँ बच्चों को जनरली बिगड़ते हुए, इन सिंपल वर्ड्स। अगर आप बेने में हो, आपको कोई रिश्तेदार, बहुत अच्छी बात है, आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अगर आप ह्यूमैनिटीज की साइड से, तो जेएनयू इज अ ग्रेट पिक फॉर यू। बट यही बात है ना कि मतलब आपको देखना है कि आपकी पहली प्रायोरिटीज क्या रहनी चाहिए। सो आपको ड्यू, एनएमआईएमएस, क्राइस्ट और सिम्बी के बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट इज माई पर्सनल टेक फॉर यू। उसमें भी आपको सेंट्रल कैंपस के लिए एम करना चाहिए हर किसी के, ठीक है। क्राइस्ट का इज बैंगलोर, एनएमआईएमएस का इज मुंबई एंड सिम्बी का इज पुणे। तो आपको इधर ही एम करना है। सबसे ज्यादा तो बीबीए में फर्स्ट प्रायोरिटी क्राइस्ट होनी चाहिए, बिकॉज क्राइस्ट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत अच्छा है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आरओआई भी उधर का मतलब बेटर रहता है एज कम्पेयर टू एनएमआईएमएस, ठीक है। तो बीबीए के लिए बीबीए फ्लैगशिप कोर्स भी है क्राइस्ट का, तो बीबीए शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको क्राइस्ट से करना है तो। एंड बीएससी की बात रही तो बीएससी में कैसे कैसे कोर्सेज आते हैं, कुछ लोगों को डाउट होगा तो मैं बता देती हूँ। उसमें आता है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस, विद साइंस के टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। ऑन टॉप ऑफ इट इसमें ना हम सिर्फ कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कर रहे होते, हम ऑल्सो साथ में देख रहे होते हैं कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं कि मैं नीचे क्यों देख रही हूँ क्योंकि मैंने नोट बना रखे हैं लिटरली। कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, व्हाट मैटर्स इज की आरओआई, एक्सपोजर और क्राउड क्वालिटी कैसी है उस कॉलेज की। इट मैटर्स ऑल लॉट, ठीक है। आरओआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरओआई? आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं डीयू के कॉलेज, क्यों लोग क्यों कहते हैं कि डीयू अच्छा है, तो इस साल की फीस होती है कुछ 40,000, मैक्सिमम 50,000। डीयू की फीस 30 के टू 50 के लाई करती है पर ईयर। एंड जब हम आपकी प्लेसमेंट लगती है तो वो मतलब ऑब्वियसली वही सेम एलपी की लगती है, 6 एलपी एवरेज होता है मोस्टली हर ड्यू कॉलेज का। अब आप एसआरसीसी की बात करो तो उनका 9-10 होगा, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट केस। तो आरओआई मैटर करता है कि आपने कितना लगाया और आपको एक्चुअली में आपकी जॉब कितनी की लग रही है, आपकी प्लेसमेंट कितने की लग रही है, दैट इज आरओआई। एक्सपोजर इज की कितनी सोसाइटीज, कितने क्लब्स, कितना इवेंट्स ये सब कंडक्ट करवा रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं बियॉन्ड प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स किस लेवल की आपको मिल रही है, दैट ऑल कम्स अंडर एक्सपोजर, ठीक है।
क्राउड क्वालिटी क्यों मैटर करता है? बिकॉज आपने सुना होगा द पीपल दैट यू सराउंड योरसेल्फ इज द वन दैट यू बिकम आफ्टर सम टाइम। तो क्राउड क्वालिटी बहुत मैटर करती है इन माय आइज। आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट दैट पीपल दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद। ठीक है, जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आपके आसपास क्राउड मोस्टली इंग्लिश बोलेगा, आप इवेंचुअली ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, इट्स ओके, यू विल इवेंचुअली लर्न दैट। एंड अगर जैसे मैं जीएस में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे मोस्टली लोग पंजाबी बोल लेते हैं। आई वाज़न्ट रियली कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन पंजाबी अर्लियर, बट इन लोग के साथ बीच में रह के मैं पंजाबी अब बहुत फ्लुएंटली बोल पाती हूँ। तो इट इज एक क्राउड का इफेक्ट पड़ता है। इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ मच क्राउड एक्चुअली मैटर्स। आई नो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको होता है यार बस मुझे कॉलेज करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन, अदरवाइज मेरे को करना तो बिजनेस ही है अपने पापा का, या अपना खुद का मुझे करना है कुछ बिजनेस, व्हिच इज ग्रेट। मुझे अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है अपने कॉलेज के टाइम में, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं अपना कॉलेज भी बैलेंस आउट कर लूँ और मैं अपने साथ साथ में स्टार्टअप भी लॉन्च कर लूँ, या मैं मतलब और एक्स्ट्रा चीजों पर अपनी एक्टिविटीज पे स्किल्स पे फोकस कर सकूँ। मुझे बस इस नाम के लिए चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, DUSOL में चल जाते हैं, विच इज द वर्स्ट डिसीजन दैट यू कुड पॉसिबली टेक। तो उधर तो नहीं जाना है आपको। क्या करना है, एक ऐसा कॉलेज चूज करना है जैसे DU में अगर आपका होता है टॉप 10 के बाद, ठीक है, कुछ भी किसी भी कॉलेज में, तो मैं ट्रस्ट में आपका फिर इतना मुश्किल नहीं रहेगा कॉलेज लाइफ। इट्स लाइक इट वुड बी प्रीटी इजी। एक दो कुछ क्लासेस होंगी, बहुत मतलब दिन में एक दो क्लासेस होंगी, और अटेंडेंस का इतना कुछ चक्कर नहीं होगा। तो DU का एक वो टैग भी मिल जाएगा आपको, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने पापा का बिजनेस या आप अपना कुछ अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं वो आप इजीली मेंटेन कर पाओगे। रही बात अगर करना ही है और DU में नहीं हो रहा है, कहीं और किसी प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, तो क्राइस्ट में तो देखो यार 85% अटेंडेंस रहती ही है, NMIMS में 80-75 रहती ही है। तो तब बहुत डिफिकल्ट होगा अपना स्टार्टअप कुछ लॉन्च करना। बट बैंगलोर इज नोन एज अ स्टार्टअप हब, तो वो सब अपना एनवायरनमेंट देख के फिर आपको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट देन यू वुड हैव बोथ द ऑप्शंस ओपन फॉर यू, जहाँ पे आप प्लेसमेंट के लिए भी बैठ सकते हो और अपना स्टार्टअप भी लॉन्च कर सकते हो, बिकॉज आपके आसपास मेजोरिटी लोग स्टार्टअप्स वहाँ कर रहे होंगे। तो बट करना ही है, श्योर हो कि अपने पापा का बिजनेस संभालना है या अपना कुछ बिजनेस आगे जाके करना है, तो DU शुड बी योर फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्योंकि DU का टैग भी मिल रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप अपनी चीजें भी मैनेज कर पाओगे इजी। अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। आप कहोगे यार बट मनवीन अगर मुझे करना ही अपने पापा का बिजनेस है तो मैं DU में क्यों जाऊँ, तो मैं किसी भी कॉलेज से कर सकता हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज जो लोग आपको मिलेंगे DU में, जो ओपन माइंडेड पीपल मिलेंगे, जो क्रेजी एक्सपोजर मिलेगा आपको, वो आपके बिजनेस में इनडायरेक्टली कब आपको हेल्प कर रहा होगा वो आपको नहीं पता चलेगा। आप आगे जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे तो यू वुड वांट पीपल जो मतलब रेडी टू हेयर अबाउट दैट बिजनेस आइडिया। या अगर आपको कोई अपना बिजनेस पार्टनर ढूंढना अपने कॉलेज में, सो यू नीड अ गुड कॉलेज इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबल एंड अ गुड बिजनेस अहेड इन। यू अंडरस्टैंड कि कैसे बिजनेस और आपके कॉलेज का भी एक्चुअली में कनेक्शन था। That is how you pick the college, city, and the thing that you want to do ahead in life. And if you want me to make a video on BBA, BCom या BSc, आपके लिए कौन सा best है, so I could also make that. Let me know if you want to see anything else in the comments. I would love to make it for you guys. I would really appreciate if you would show the love on this video by liking, subscribing, and commenting down on this video. Thank you so much for watching this. I'll see you guys in the next video. Bye bye.